Good afternoon, everyone. Let's begin with a new topic, legitimacy and power. So, we are starting with the equation of power systems. The power systems that survive solely to protect themselves, solely for their own existence. So, in this sole existence, there comes a question, whose interests do these power systems serve? So, there are many answers. So it depends on the kind of power system we are talking about. So if it is a democratic power system, then we are serving the collective interests of people. If it is a dictatorship, then it is the personal whims of the dictator. If it is a patrimonial state, then we are talking about the interest of royal family. Then, if it is a fascist state, then we are talking about the fascist elites or sometimes the aristocrats. So, these are the collective group of interests that are being served. But then we come to the question of legitimization, that how this power system is accepted. Because it's like saying that somebody in your backyard is building a pyramid. Now, if the walls of the pyramid, if they encroach upon your private land, then you are going to resist upon it. You are going to start a legal battle that no, this thing is not right. But in case of political power, sometimes we accept those things. We accept those encroachment. We accept if somebody has certain privileges, somebody has more rights. So the our topic for today is that acceptance we call legitimacy. So before we proceed on to the meaning of acceptance and why do any kind of power system is accepted, let's have a relook at the definition of power. So power is the ability to to influence outcome or to achieve the desired outcome, जो पहले वाले लेक्चर में देखा था. अब ये डिजायर्ड आउटकम कुछ कुछ भी हो सकता है. नाउ आपके पास ये पूरा ग्रुप दिया हुआ है that if it is democracy, then the desired outcome is the collective welfare, and if it is a patrimonial state, then it is the power that should accrue to the royal family. Where if it is dictatorship, then those dictatorial tendencies must get fulfilled at both material and psychological level. So that's the power. Then we also discussed the three-part division of power, the three-part compartmentalization of the definition of power. That is, power has a source, then power has a purpose, and power has a target. So again, यहाँ पे इन सब में आप देख सकते हैं. Let's say we are talking about any elite aristocratic family. Then the source of that power may be a religious sanction, maybe financial status, maybe religious customs, maybe any other customary or any other frivolous source. Then target, aristocratic family में the target is the elite, the aristocratic elites, and purpose to fulfill their desires. So इसी तरह से बाकी सब के साथ आप ये चीज रख सकते हैं. डेमोक्रेसी की बात करें, so the source is usually a constitution, then the target is usually the individual people. जो बाद में जब उन सबको मिक्स करें तो then the collective persona, and finally the desire, the purpose of that power is the collective welfare. Now definition, पावर की डेफिनेशन हो गई, द थ्री पार्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया. नाउ वी अगेन लुक एट दिस थिंग, पावर सिस्टम्स, their survival, and then the acceptance. So how do people come to accept any form of power, any form of power system that they face? और उसके साथ ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक ड्यूरिंग नाजी जर्मनी. सो उस हॉलोकास्ट के दौरान लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने, उन्होंने वो पावर सिस्टम क्यों एक्सेप्ट किया. यही अगर ब्रिटिश इंडिया की बात करें, सो हम लोगों ने 200 साल तक ब्रिटिश लोगों को क्यों एक्सेप्ट किया, वो पावर जो हमने क्यों एक्सेप्ट की. और आज भी बहुत सारे स्टेट है, लाइक फेल स्टेट है, द मिलिट्री स्टेट्स है, डिक्टेटरशिप्स हैं,
तो उनमें भी सेम क्वेश्चन है कि लोग उस चीज को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं। नाउ वो आगे बढ़ने से पहले ये जो बार बार मैं एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं, दैट्स व्हाट लेजिटिमेसी इज, दैट पीपल एक्सेप्ट द पावर सिस्टम। नाउ थिंग इज, पावर कैन बी एनफोर्स्ड एंड पावर कैन बी कन्विंस्ड। सो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एंड जो पावर एनफोर्स होती है विद कोअर्शन, विद मिलिट्री रूल, विद हैवी हैंडेडनेस, वो ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। But the subtle maneuver, the psychological penetration that convinces people that the power they are seeing, the order, the system that they are facing is natural, and us convincing atmosphere mein power gets, more durable legitimacy. But otherwise, the real acceptance, it is with the people, that people consider that power system to be acceptable. And that acceptance, that acceptability, it comes, it appears, it has to appear natural. So अब वो जो naturalness है, it comes with the political system itself. Because अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, लाइक डिक्टेटरशिप हो गया, पैट्रिमोनियल स्टेट है, फासिस्ट स्टेट्स है, टोटलिटेरियन स्टेट्स हैं, नाजिज्म नहीं है, ब्रिटिश इंडिया है। तो वो सब जो है वो एक पास्ट की कहानी है। आज के टाइम में ज्यादातर जो है स्टेट्स, दे आर डेमोक्रेटिक स्टेट्स, democratic state that are catering to the needs of people, that they are addressing the issues and aspirations of people. और उन democratic states में अब ये question, the acceptance, it comes forefront when people accept those political system as natural, because that acceptance comes from the source. So democratic state में it is usually the rule of law. In any way, हमारा जो कंसेप्ट है लेजिटिमेसी, वो यही है, दैट पीपल एक्सेप्ट पावर, पीपल कंसिडर पावर एज राइटफुल, एज अप्रोप्रिएट, मेक्स द पावर सिस्टम लेजिटिमेट एंड ऑथेंटिक, और उसी वजह से वो पावर सस्टेन करते हैं। सो whenever you come across this definition, so the legitimacy, it is the belief that the authority, the power system exercise is rightful, appropriate and acceptable. So that acceptance is legitimacy. Now बाकी आपको बता दिया that if something is based on fear or repression or psychological manipulation, then those form of political system are less likely to stay for a long time. And something that is not based on people's consent, those political system are likely to fall apart sooner or later. फिर बात करते हैं क्लासिकल पर्सपेक्टिव ऑन लेजिटिमेसी। सो जब से ये पोलिटिकल सिस्टम शुरू हुआ है, सो यूजुअली हम इसको कहते हैं प्लेटो के टाइम से, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ग्रेको रोमन एम्पायर। बट उसके अलावा द पोलिटिकल सिस्टम ऑलरेडी स्टार्टेड सिंस आवर टाइम्स इन मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड। जब से हम प्रोटो स्टेट या प्रोटो सोशल एग्जिस्टेंस में आ गए थे, तब से ही सम फॉर्म ऑफ पावर स्ट्रक्चर वाज देयर। इट्स ओनली दैट कि यहाँ तक प्लेटो के टाइम तक आते आते पावर गॉट new lease of life, a power as a as entered as a separate discipline. फिर प्लेटो की बात करते हैं। सो प्लेटो सेड कि legitimacy, the acceptance of people, it should be with the idea of justice. So यहाँ पे लोग उस पावर को एक्सेप्ट तभी करेंगे जब रूलर deals with the common good of people. And then according to the words of Aristotle, any form of political system, any form of power will get acceptance by the people if they serve the public interest. So यहाँ पे again बार बार आपको समझ में आ रहा है, जो सेम थीम रिपीट हो रही है, acceptance of any political system, acceptance of power. So वहाँ यहाँ पे देख रहे हैं कि एक उसके पीछे एक पर्पस है कि लोग उसको एक्सेप्ट क्यों करेंगे। और फिर अगेन अगर उनको मैनिपुलेट करो या उनको डराओ धमकाओ, मिलिट्री यूज करो, वायलेंस यूज करो, तो भी लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। बट वो जो लेजिटिमेसी है वो ज्यादा टाइम तक टिकेगी नहीं। सो अल्टीमेटली जो सोर्स है लेजिटिमेसी का, इट इज पॉपुलर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बाय पीपल।
देन बीच में जो एक टाइम आया था, द मिडीवल टाइम, जो बार बार आपको मैंने बताया, द डार्क एज बिकॉज इस टाइम तक आते आते जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो रुक गई थी. रैशनैलिटी वॉज नॉट देयर बिकॉज द व्हील ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दे डिपेंड ऑन रैशनैलिटी एंड रीजन. But the nexus of papacy, nexus of church and the ruling authority, both of them, they psychologically manipulated people, or in one form or another, they kept people in that abyss of ignorance, so that their power remained untouched, unquestioned. सो उस टाइम पे उन्होंने ये जो आइडियाज हैं, रैशनैलिटी, रीजन, साइंटिफिक प्रोग्रेस, क्वेश्चन, उन सबको क्वेश्चंस को उन्होंने ऊपर आने ही नहीं दिया. जब आए नहीं तो पीपल हैड टू एक्सेप्ट नथिंग बट व्हाट द चर्च एंड रूलिंग अथॉरिटी सेड. एंड देन उस टाइम पे जो रूलिंग अथॉरिटी है वो फिर लोगों की जो सुपरस्टिशियस बिलीफ है एंड देन द गॉड फीयरिंग साइड ऑफ पीपल, उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने कहा है कि द रूलिंग अथॉरिटी इज द डिवाइन अथॉरिटी and kings have the divine right of rule. So it was a nexus, क्योंकि लोग जो है they feared God, they had their own superstition, so उसके लिए they needed somebody to answer their eternal questions. जो भी हम आज अपने जो क्वेश्चंस देखते हैं, मोस्टली द साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, या फिर जो लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम आज भी पूछते हैं, तो उस टाइम भी लोग जो है जो भी अपने आसपास जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, द लॉसेस, द सेटबैक्स, द क्रिपलिंग मॉरल अथॉरिटी, सो उन सब के लिए दे टुक रेफ्यूज इन द अथॉरिटी ऑफ चर्च बिकॉज चर्च हैड द आंसर्स. और फिर चर्च ने कहा कि यहाँ पे जो उनके ऊपर रूल कर रहा है, द रूलिंग अथॉरिटी, ही हैज द डिवाइन राइट. सो लोगों के पास और कोई चारा नहीं था बट एक्सेप्ट इट. सो यहाँ भी उस टाइम पे the kings, they got the legitimacy, the right to rule because of this nexus. फिर उसके बाद मॉडर्न एज आई, मॉडर्न एज के बाद रीजन ये आया, एनलाइटमेंट, रेनेसा, एंड देन पीपल थ्रो दिस yoke of superstition and obscurantist practices. Then फिर मॉडर्न टाइम्स की बात करें, then Max Weber, he gave three kinds of authorities. Again यहाँ पे authority is the ruling person. So authority is like a weapon wielded by a ruler. एक राजा के हाथ में कुछ पावर है, so that's the authority. But legitimacy is whether people accept that power, whether people accept कि इस आदमी को, इस राजा को या इस पर्सन को वो पावर देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. So यहाँ पे जो legitimacy है, एक्सेप्टेंस है, पॉपुलर एक्सेप्टेंस, वो तीन उसके सोर्सेज हैं. फर्स्ट द ट्रेडिशनल वन, जिसपे जो अथॉरिटी है, whoever was ruling, whatever kind of political system existed at that time, first it was traditionally accepted, and now the traditional sources were customs, ritual and inherited status. यानी लोगों ने उन ट्रेडिशनल टाइम्स पे उन मोनार्कीज को और ट्राइबल लीडरशिप को उनको एक्सेप्ट किया बिकॉज they had the sanction of customs, rituals, and their own status. Then the second kind of authority is the charismatic one. Now, यहाँ पे जो source है, when people accept any charismatic authority, any person, or people declare someone to be their leader, like महात्मा गांधी हो गया, मार्टिन लूथर किंग, या फिर एब्राहम लिंकन हो गया, या नेल्सन मंडेला. इंडिया के केस में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, बाद में जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद जितने भी आए, सो उन सब में भी जो सोर्स जो था, द पॉपुलर एक्सेप्टेंस, इट वाज बेस्ड ऑन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज. जैसे मैं महात्मा गांधी का एग्जांपल दे लेता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में भी नेक्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं ये टॉपिक आएगा. सो महात्मा गांधी वाज एक्सेप्टेड बिकॉज he had that moral qualities, truth and non-violence, and he stood by them. So similarly हर एक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी charismatic qualities थी जिसके लिए उनको लोगों ने accept किया. Then in modern times, the authority that is legitimized, the authority that has clear legitimacy, is the legal rational one.
सो यहाँ पे जिस भी पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सेप्ट किया जा रहा है मॉडर्न टाइम्स में या कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, सो दो सिस्टम्स आर रूटेड इन इम्पर्सनल लॉज एंड ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर, या हम कह सकते हैं इसको सिंपली रूल ऑफ लॉ. सो यहाँ पे जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं that has the legitimacy of people because they are based in the concept of rule of law. They are based on modern constitutions and democratic systems. फिर now अब कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी इन द मॉडर्न वर्ल्ड. सो आज के जो कंटेम्प्रेरी टाइम में इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, the legitimacy is derived from popular consent or popular acceptance. When people accept these authorities, these political system, because this acceptance is based on the whole atmosphere, the whole landscape of rule of law, जिसमें उसमें उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, लाइक इलेक्शंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हो गया, the concept of liberty हो गया, then many other liberal concepts are there, और dispute resolution, a kind of fairness है. So ये सब चीजें जो है, इन सब को मिला के वो acceptance मिलता है, and that's how the modern democratic system gains its legitimacy. और फिर ये भी है कि लोगों ने वो अथॉरिटी जो है, प्राइम मिनिस्टरशिप जो कह सकते हैं, या पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है, या जिसको भी पावर में इलेक्ट किया है, तो यहाँ पे लोगों को पता है कि वो अथॉरिटी किसी फोर्स के थ्रू, कोऑर्शन के थ्रू या मैनिपुलेशन के थ्रू नहीं आई है. दे themselves have elected those representatives. So यहाँ पे ये एक फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस है, फॉर्म ऑफ लेजिटिमेसी है कि अल्टीमेटली द डिसीजन वाज देयर्स. फिर अब आज के टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम में, जो लेजिटिमेसी है उसमें भी मल्टीपल लेयर्स हैं. सो फर्स्ट, पीपल एक्सेप्ट the modern political system because of the procedural dimension. So procedural dimension means कि जितने भी procedures हैं, they are based on the just principle. They are rooted in the idea of justice. कि जो election है, जिसके थ्रू वो किसी political party को या किसी person को elect कर रहे हैं, they are free and fair. And then the whole electoral machinery, it is based on the concept of justice and the rule of law, which has an inherent procedure. We call it due process of law. So वो due process of law will be followed. फिर second kind of legitimacy in modern times, it is the performance based one. So performance based ones means कि जो भी political system है पावर में, वो पावर में अपने गवर्नेंस आउटकम्स की वजह से ना. अभी यहाँ पे एक जो चीज जो है, जो पावर के डेफिनेशन की बात है, वो आपको ध्यान में रखनी है. दैट पावर इटसेल्फ इज अबाउट अचीविंग द डिजायर्ड आउटकम्स. क्योंकि ये आउटकम आया तो फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि आपको अपने आंसर राइटिंग के लिए वो एनालिसिस आपको दिमाग में रखना है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग टू इट. वो ये है कि political science, unlike other subjects, other technical subjects, it is quite a subjective one, a normative one. So subjective and normative means यहाँ पे आपको दो फायदे हैं. फर्स्ट, जैसे अगर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर आपको किसी डेफिनेशन के बारे में कहा गया है, लाइक जैसे मैं ये भी पढ़ाता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी है. सो अगर उसमें कोई कंसेप्ट आ गया, लाइक दे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डीप्रोटोनेशन, अब उसमें हम अपना सब्जेक्टिव बायस नहीं डाल सकते कि नो, इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलर कंसेंट ऑफ पीपल टू डीप्रोटोनेट एंड प्लक आउट द हाइड्रोजन बॉन्ड. तो वो चीज उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट में नहीं हो सकती. सेम किसी भी और टॉपिक की बात करें, साइंसेस की हो गया, मैथमेटिक्स की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सो उनके अंदर वो ऑब्जेक्टिविटी होती है. अब ऑब्जेक्टिविटी के उसका फायदा भी है और नुकसान भी है. ऑब्जेक्टिविटी में ये होता है कि कोई भी चीज होगी 2+2 = 4. सो दैट्स वेल शेयर बिलीफ, और उसी तरह से काम होगा.
ना आप इसके अंदर कुछ अलग नहीं डाल सकते, बिकॉज जैसे जिस तरह से 2+2 सिर्फ अगर ये कहें तो दो नंबर्स हैं जो हमने एक्सेप्ट किए, और उस एक्सेप्टेंस के बाद हमने ये भी एक्सेप्ट किया कि इस तरह से ये दिस वे ऑफ आउटकम विल बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। सो वही चीज ऑब्जेक्टिव में सबके द्वारा वो चीज होगी, और आपको उसी प्रोसीजरल स्टेप्स में आपको वो आंसर तक आना है। सो वो एक क्लियर कट सेटअप है, उसके अंदर अगर इसी तरह से आंसर पे आए तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, और कोई दूसरा तरीका है तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। बट सब्जेक्टिव में हो, जो सब्जेक्टिव चाहे होते हैं डिसिप्लिन्स, नॉर्मेटिव डिसिप्लिन्स, उनके अंदर ये होते हैं मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होता है। यानी आपका जवाब जो है इट इज बेस्ड ऑन अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में इस तरह से कि आप उस चीज को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, और आपका इंटरप्रिटेशन सही भी हो सकता है ना, बशर्ते आप उसके अंदर कुछ जो जरूरी चीजें हैं वो इंक्लूड करें। सो यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने के लिए पोलिटिकल साइंस में या जिस भी जो भी सब्जेक्ट डोमेन्स होते हैं उन सब के अंदर ये है कि आपको जो बेसिक्स हैं वो चीजें याद रखनी है, और उसके अलावा इंटरप्रिटेशंस आपके काफी अच्छे रहेंगे। और इंटरप्रिटेशंस जितना आपका एक नया इंटरप्रिटेशन आएगा उतने ही आपके मार्क्स के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज यू हैव टू गिव इट अ सब्जेक्टिव ऑरा। आपको इसको ऑब्जेक्टिव की तरह डायरेक्ट लिख के नहीं आना है, और पहली बात तो क्वेश्चन भी वैसे नहीं आते। एनीवे, सो यहाँ पे जो चीज स्टार्ट हुई सब्जेक्टिव थिंकिंग, वो पावर को लेकर है कि आपको एनालिसिस करना है। आपको अपने ही आइडिया को, एक आइडिया को बहुत सारे अदर आइडियाज के साथ जोड़ के, बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट्स के साथ, अदर थियरीज, कोड्स, इन सब के साथ जोड़ के एक एक नो बेसिक मैग्नेट प्रिपेयर करना है जो आप एग्जाम में आप लिख सके। सो यहाँ पे वो चीज आती है जब परफॉर्मेंस लेजिटिमेसी की बात करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस आउटकम्स, एंड पावर का भी जो है इट इज अबाउट डिजायर्ड आउटकम। सो एक तरह से यहाँ पे द परफॉर्मेंस लेजिटिमेसी, वो सब पॉलिटिकल सिस्टम जो गवर्नेंस आउटकम, गवर्नमेंट डेटा या स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो रूल करते हैं, उनका भी अल्टीमेट एम इज टू सिक्योर पावर। और यही यहाँ पे इसकी बात करें, वो गवर्नमेंट, वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो प्रोसीजरल जस्टिस फॉलो करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉलो करते हैं, दे हैव मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस। सो यहाँ भी आउटकम इज टू सिक्योर जस्टिस। सो यहाँ पे वो स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे वो प्रोसीजर जस्टिस है, बट दोनों का ही सिमिलर, दोनों का ही डायरेक्ट रिलेशंस है विद द कांसेप्ट ऑफ पावर। कि यहाँ पे अगर वो जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी सिक्योर करते हैं, देन दे हैव द राइट ओवर पावर। और यहाँ पे सेकंड वाले केसेस में अगर वो स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव करते हैं, देन दे हैव द होल्ड ओवर पावर। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली सर्विस डिलीवरी की बात होती है, वेलफेयर डिलीवरी, क्राइसिस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब। देन द थर्ड वन इट इज द नॉर्मेटिव वन। सो नॉर्मेटिव अगेन जो अभी सब्जेक्टिव वाला आपको बताया। सो यहाँ पे द नॉर्मेटिव लेजिटिमेसी इट फ्लोज फ्रॉम adherence to constitutional values. Now यहाँ पे एक और चीज आती है, स्पेशली अगर हम अपने जो सब्जेक्टिव डोमेन्स हैं उनको ना देखें, एंड देन वी स्विच आवर अटेंशन टू व्हाट इज रियली गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। देन यहाँ पे वर्ल्ड में हमको पता है कि वी live in a certain structure that resemble a concrete jungle. I mean, it is a jungle, still a jungle, but ये जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ कंक्रीट। सो दैट्स व्हाई इट इज अ कंक्रीट जंगल। बट रूल्स जो है वो सारे के सारे जंगल के ही हैं। एंड जो यहीं पे हम कौटिल्य की बात करें तो द लॉ ऑफ द फिश, it is still applicable in this concrete jungle. Law of fish में होता है कि the strong eats the weak. So हम यही देखते हैं कि किस तरह से हर तरह का फिजिकल, साइकोलॉजिकल वायलेंस है, और ये लॉ ऑफ फिश जो है अभी भी काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग
they are torturing the weak, और किस तरह से power itself has become an a perverted version, कि पावर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटकर पावर हैज बिकम अ थिंग ऑफ लस्ट, अ फोरबिडन लस्ट, जिसके पीछे हर कोई पागल है. सो ऐसे में नॉर्मेटिव लेजिटिमेसी इट gains a spatial position in the contemporary times. तो उसकी वजह ये है that when in the modern times, in the when we see the concrete jungle and law of fish along with the modern times, then we get this idea that people will do everything, people will bend themselves and the rules and the people around them just to eat that forbidden fruit of lust. So उसके लिए यहाँ पे the power should be anchored towards something that is sacred in the minds of people. Sacred मतलब कोई religious नहीं, but in the minds of people it should be that power should flow from something that is accepted everywhere, and it is usually people themselves. So power should flow from people, लेकिन this thing has to be institutionalized. Otherwise ये हर तरफ लोगों के लिए ये चीज मेंटेन रख पाना कि जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल सिस्टम है, वो उनके कंट्रोल में रहे, अकाउंटेबल रहे, ये हर एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है. सो दे नीड द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ दिस सीक्रेट बिलीफ, और वो हम करते हैं थ्रू रूल ऑफ लॉ, बिकॉज रूल ऑफ लॉ इज द commonly agreed framework, a common agreement between the people कि हम लोग इस तरह से अपने आप को रूल करना चाहते हैं, या वी वांट टू बी रूल्ड बाय इन दिस मैनर. सो यहाँ पे जो नॉर्मेटिव लेजिटिमेसी है वो एक्सेप्ट करती है, जो कंटेम्प्रेरी टाइम में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, वहाँ पे लोग ये चाहते हैं कि जो भी पावर में रहे, दे they revolve themselves, they orient themselves around the constitutional values, because constitutional values is nothing but their own words, their beliefs, their good faith, and that faith must not be broken. So इसलिए मैंने कहा कि आज के मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टाइम में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये जो सब्जेक्टिव लेजिटिमेसी है या जो नॉर्मेटिव लेजिटिमेसी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडहेरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. जिसके अंदर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं तो फिर उसके अंदर बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, और सिविल लिबर्टीज हो गए, पॉलिटिकल लिबर्टीज हो गए, इंक्लूसिवनेस है, वेलफेयर है, इट्स लाइक होल्डिंग द होल सोशल फैब्रिक टुगेदर. और कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर वो इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करेगा, सो पीपल विल एक्सेप्ट दैट, पीपल विल एक्सटेंड देयर लेजिटिमेसी. देन in modern times there is also another element, the deliberative legitimacy. So यहाँ पे दो चीजें हैं. Deliberation means inclusion in the discussion, या फिर ये कह सकते हैं instead of institutionalized version of people's will, people want the direct power in their hands. जो इससे पहले जो नॉर्मेटिव वाला है, मैं आपको बताया था कि लोग जो है वो हर बार पॉलिटिकल सिस्टम को वो अकाउंटेबल ठहरा नहीं सकते. सो इसीलिए दे नीड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पावर, और वो करते हैं रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. दोनों ही सेम चीज है. बट यहाँ पे अगर वो चीज भी काम ना आए, सो मॉडर्न में स्टेट में क्या हो रहा है कि जो स्टेट जो है दे आर फ्रेगमेंटिंग देमसेल्फ, और वो जो क्योंकि छोटे छोटे स्टेट जो होते हैं वो अच्छी तरह से रूल हो सकते हैं, और यहाँ पे जो रियल फ्रेगमेंटेशन नहीं, सेसेशनिज्म नहीं है. यहाँ पे ये है कि पावर इट इज बिकमिंग डिसेंट्रलाइज, पावर इज बीइंग डिवॉल्व फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. सो ऐसे में लोगों के हाथ में पावर आ रही है. सो उसका रीजन यही है दैट द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पावर विच इज द इनैक्टमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, वो एक सही चीज है एक बड़े स्टेट के लिए, डाइवर्स पीपल के लिए. लेकिन जब उसमें भी अगर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर ना हो, then people feel that their faith is being eroded, that they are being knocked down.
सो ऐसे में डायरेक्ट पावर चाहते हैं. डायरेक्ट पावर मीन्स दे हैव अ से इन द डिसीजन मेकिंग. कि अल्टीमेट क्रिटिकल पावर जो है वो डिसीजन मेकिंग को लेकर ही है. टू इफ यू वांट टू अचीव सर्टेन डिजायर आउटकम देन यू हैव टू मेक द डिसीजंस. और वो डिसीजन मेकिंग पावर अगर आपके हाथ में है देन यू आर द पर्सन होल्डिंग द पावर. सो deliberative legitimacy, it is in one way or another, it is to hold the power in our own hands. कि अब legitimacy किसी और को देने की जगह we should have the legitimacy ourselves. So यहाँ पे जो citizens जो है they take part in this collective decision making. So यहाँ पे जितने भी जो failures हैं institutionalized versions के, like transparency cannot be maintained, then there are many corruptions and controversies, फिर surveillance programs हैं, फिर जो political systems हैं in larger states, they misuse their power. So उन सब के लिए फिर ये deliberative one है कि yes, we will discuss over the issue, then we will come with the same thing we have been doing all along, but through rule of law. अब rule of law की जगह we are the rule of law ourselves. फिर let's move on to the critical perspectives. Now these critical perspectives जो भी हम देखेंगे, कार्ल मार्क्स का हो गया, अंतोनियो ग्राम्सी एंड यूगेन हैबरमास. तो इन सब के अंदर हम ये चीज कह सकते हैं कि these are not only the critical perspectives but they are the skeptical view of this natural acceptance. क्योंकि legitimacy is the acceptance, the popular acceptance, कि लोग उस पावर सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं. बट when viewed this acceptance with skepticism, then हमारे पास फिर ये सवाल आता है, what if जो हम देख रहे हैं it is not real but a fabrication, a manipulation. तो यहाँ पे फिर वो जो लेजिटिमेसी का जो पूरा डायमेंशन है, पूरा लैंडस्केप जो है, नाउ इट कम्स अंडर स्कैनर. कि हो सकता है कि हम जो चीज देख रहे हैं वो असल में इट्स जस्ट एन आर्टिफिशियल वन, अ काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन. और हम लोगों को बेवकूफ बना के हमारे बिलीफ सिस्टम को या हमारे जो यूजुअल पॉइंट्स हैं, यूजुअल वे ऑफ लिविंग है, उसको फैब्रिकेट करके हमें वो दिखाया गया जो हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं. बट देन द रियल मोटिव्स वर डिस्गाइज्ड, द रियल मोटिव्स वर हिडन, एंड आफ्टर we had given our legitimacy, we are given our acceptance, then we had to see the ugly face of it. तो यहाँ पे ये इन तीनों critical perspective में यही चीज बार बार आ रही है, that what if you have to question is that what if what you are seeing, the legitimacy that you have granted, the support that you have extended, was built on a castle of sand. It was built on psychological manipulation. और उसको उन्होंने कहा an ideological construction, कि हम लोगों ने जो पावर जो एक्सेप्ट की है, it is a kind of manipulation so that power appears natural and inhabitable. So वो कैसे है? जैसे कार्ल मार्क्स के वर्ड से देखते हैं. So he described legitimacy as the false consciousness, कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, the way we are looking at power system, so it has been hijacked and manipulated since the beginning. मतलब शुरू से ही, जब से ये प्रोटो सोशल सिस्टम्स शुरू हुए थे, जब हमारे जो स्टोन एज एंसेस्टर्स जो हैं, जब they made switch from nomadism to permanent settlement, और जब से सोसाइटी बनना शुरू हुई, जब से हम साथ आना शुरू हुए, जब से विलेजेस, ट्राइब्स, क्लान्स वगैरह बनना शुरू हुए, और उसी टाइम से जो प्रोटो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ that we have been living a lie. And that's what the false conscious, the psychological fabrication, the psychological manipulation या ideological construction, जो भी कहना चाहें. तो यहाँ पे शुरू से ही the ruling class, the dominant class, they manipulate ideology इस तरह से that we accept
the political system without resistance. We accept the natural inequalities. We accept the system, the unequal system, the inequalities, the extortion, the exploitation as natural. तो यहाँ भी एक ये सोचने वाली बात है कि हो सकता है शुरू से ही वो आइडिया जो है वो हम लोगों को इस तरह से कन्विंस किया गया दैट वी एक्सेप्टेड दिस लाइफ और दिस पोलिटिकल सिस्टम एज नेचुरल। और अगर हमने एक्सेप्ट कर दिया है इसका मतलब है दैट विदाउट our direct support we have extended our legitimacy, क्योंकि legitimacy again it means acceptance। तो चाहे आप अपने मन से एक्सेप्ट करें या ना करें, है ना, चाहे गुस्से में ही आप वो चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये कास्ट सिस्टम ऐसा है, इसमें इस तरह से हायरार्की है और ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये मिडिल कास्ट है, या फिर ये वाइट है, ये ब्लैक है, इस तरह से जो अगर आप हायरार्की एक्सेप्ट कर रहे हैं इवन व्हेन यू आर सीथिंग विद एंगर, बट इन वन वे और अनदर यू आर एक्सटेंडिंग योर लेजिटिमेसी। जैसे एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं कि मॉडर्न जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सो दे नॉर्मलाइज प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वेज लेबर, एंड उसके साथ ही दे क्रिएट दिस होल साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल बबल, और उस बबल के अंदर they want everyone striving for their own individual success. Now ये चीज मैं बार बार सामने लाना चाह रहा हूं that this fundamental of individual success along with the private property, it has infused a certain element which I can see in I can clearly see in the totalitarian regimes. Now आप फिर ये पूछेंगे कि जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल सक्सेस, देन द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो जॉन रॉल्स ने भी एक्सेप्ट किया है, देन आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग इन देम दैट इज कॉमन विद द टोटलिटेरियन रेजिम्स। सो वो जो कॉमन है, सो अगेन यहाँ पे एक और चीज आपके आंसर राइटिंग के लिए ये किस तरह से आपको ये चीजें जो जोड़नी है, यू हैव टू वीव द डॉट्स और यू कम अप विद अ न्यू इंटरप्रिटेशन। और जितना न्यू इंटरप्रिटेशन रहेगा उतने ही आपके मार्क्स के चांसेस हैं, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द सब्जेक्टिव फील्ड। एनीवे, सो अब इंडिविजुअल सक्सेस इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडिविजुअल साइकी एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर होल मॉडर्न जर्नी टुवर्ड्स मॉडर्निटी जो रेनेसांस एनलाइटनमेंट के बाद शुरू हुई थी। एंड देन द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इट वाज स्टार्टेड विद द आइडियाज ऑफ जॉन रॉल्स की जो स्टेट्स जो है मॉडर्न स्टेट दे शुड एग्जिस्ट सोलली टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। सो ये दोनों आइडियाज ठीक है, बट व्हेन वी सी कि क्या हम सबको प्राइवेट प्रॉपर्टी मिल रही है और क्या हम सबको इंडिविजुअल सक्सेस मिल रही है इवन आफ्टर वी टॉयल डे एंड नाइट। सो यहाँ पे फिर वो क्वेश्चन आता है दैट दिस स्ट्रगल इट हैज बिकम एटर्नल, दैट वी आर चेजिंग एन इल्यूजन which we are never which we will never be able to achieve। इंडिविजुअल सक्सेस के लिए सब हर कोई दौड़ रहा है। आप यूपीएससी के लिए आप इतने सारे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं 4 5 6 7 साल तक भी बार बार अटेम्प्ट देते हैं, वो उनके पीछे वो दे मेक अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, और उसके बाद एक एक छोटी सी ग्लिम्स मिलती है, वो भी बहुत ही कम लोगों को। और सिमिलरली प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी यही इल्यूजन है, एक एटर्नल इल्यूजन कि वी शुड हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम एक जनरल सेंस में मटेरियल रिसोर्सेज की बात करते हैं कि मटेरियल्स होने चाहिए, बट मटेरियल रिसोर्सेज के लिए वेल्थ भी तो होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे जो पिक्चर जो है वो बड़ी अजीब सी हो जाती है। वेल्थ नहीं है, वी आर स्ट्राइविंग फॉर अ लॉन्ग, इट्स लाइक जो एक साइकोलॉजिकल गेम होता है इसमें एक चूहे को एक रोलिंग व्हील के अंदर डाल देते हैं और चूहा घूमता रहता है उसी रोलिंग व्हील में और आखिर में थक के मर जाता है। सो इस तरह की एक स्ट्रक्चर हो गई है कि वी आर चेसिंग वेल्थ, बट फिर जब तक वेल्थ नहीं आती तब तक मटेरियल सक्सेस नहीं आएंगे।
सो अल्टीमेटली वो वेल्थ जा का रही। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना ज्यादा किसी चीज के पीछे पड़ने के बाद भी, व्हाई इज वेल्थ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द फ्यू हैंड्स? यानी इतना ज्यादा फर्क क्यों है? हमने उस आइडिया को एक्सेप्ट क्यों कर लिया है कि किसी चीज के पीछे पड़ते रहो, मतलब लाखों लोग किसी चीज के पीछे पड़ेंगे और दे विल स्ट्रगल, और अल्टीमेटली उन लाखों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास इतनी सारी वेल्थ होगी, और बाकी फिर इतने सारे लोग होंगे जिनके पास इतनी सी वेल्थ होगी। ये जो चीज है, ये बार बार ऑक्सफैम रिपोर्ट में आ रही है कि इस तरह से वेल्थ इनइक्वलिटीज हैं। सो ये आइडिया हम लोगों ने एक्सेप्ट क्यों कर लिया कि हाँ, मतलब हम लोग स्ट्रगल करते रहेंगे, इंडिविजुअल सक्सेस होनी चाहिए, और अल्टीमेटली जो जो भी सक्सेसफुल होगा, जो भी उस रेस में आगे निकल जाएगा विद यू नो बाय प्लेइंग फेयर और फाउल, दे विल टेस्ट दिस काइंड ऑफ वेल्थ। और बाकी लोग जो हैं, जो यू नो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो स्ट्रगल नहीं कर रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज दैट हैव कम अप शॉर्ट बाय अ फ्यू नॉचेस। यानी ये वो है जो 100 स्कोर कर गया, बट लेट्स से ये वो लोग हैं जो जिनका स्कोर 99.9% है। नाउ जो सक्सेस तो जो है इसके पास आ गई, बाकी ये लोग जो हैं जिन्होंने बिल्कुल सेम मेहनत की है, बट है ना, बिकॉज ऑफ सम रूल्स, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर्स, बिकॉज ऑफ एनीथिंग दैट वी हैव एक्सेप्टेड सो फार, उसकी वजह से दे आर जस्ट नॉट अ फ्यू नॉच, जस्ट वन नॉच शॉर्टर, और उसकी वजह से दे हैव टू कंटेंट देमसेल्फ विद दिस एटर्नल स्ट्रगल। सो एक तो ये चीज है, और वो ड्रीम जो है, इट हैज बीन द कोर आइडिया, द कोर, द लाइफ ब्लड ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। फिर अब बात करते हैं टोटलिटेरियन रेजिम्स की। तो ये है कि इसी एटर्नल स्ट्रगल की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, people they have become individualized, people have become lonely। क्योंकि आपके स्ट्रगल में अगर वेल्थ आपके पास आएगी, सो यू विल बिकम द सोल मास्टर। सो हर कोई वो सोल मास्टर बनना चाहता है, एंड उसके लिए पीपल आर नॉट कमिंग टुगेदर। और यही सेम आइडिया जो है टोटलिटेरियन रेजिम्स में था, दैट पीपल शुड बी आइसोलेटेड, पीपल शुड बी थ्रोन इन टू द लोनली डार्कनेस। क्योंकि अगर लोग साथ में आएंगे, then they will question it, they will question the totalitarian tactics, they will question the manipulation, they will question the truth। so ऐसे में लोग साथ ना आए, इसके लिए उनको आइसोलेट करना जरूरी है। तो ये जो कैसे आइसोलेट किया, वो सब जो टोटलिटेरियन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर है। बट यहाँ पे ये तीनों चीजें जो हैं, ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है दैट सेम जो टोटलिटेरियन रेजिम्स ने जो चीज की है, वही कैपिटलिज्म कर रहा है, दैट पीपल शुड बी आइसोलेटेड एंड दे शुड बी थ्रोन इनटू दिस एटर्नल व्हील रेस, जिसमें किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। एंड एज लॉन्ग एज दे स्टे आइसोलेटेड, नॉट इन टॉक्स विद ईच अदर, एज लॉन्ग एज दे कीप देयर थॉट्स टू देमसेल्फ, they are not never going to question the capitalist system or the whole belief itself। and then इसी जो जो आपको बताया जो एटर्नल स्ट्रगल है, या जो स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी है, यही आइडिया, यही आइडियोलॉजिकल फैब्रिकेशन, इट इज बीइंग प्रोपगेटेड एवरीवेयर एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल, कि शुरू से अब आगे तक हम यही पढ़ते हैं, स्कूल्स में हम वही चीज देख रहे हैं, चर्च, रिलीजियस अथॉरिटीज, मीडिया, एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर, वहां पे यही चीज की बात चलती है। सो वी एक्सेप्ट दिस थिंग। जिस तरह से कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं बिकॉज वी आर फैमिली विद इट, कि हर जगह पे कास्ट सिस्टम जो है, शुरू से हम इसको देख रहे हैं, बचपन से बड़े हो रहे हैं तब से इसको देख रहे हैं, बट वी नेवर केम टुगेदर टू क्वेश्चन इट कि आखिर ये चीज है क्या। एंड दैट्स हाउ वी अनविलिंगली एक्सेप्टेड दिस थिंग एंड प्रोवाइडेड इट लेजिटिमेसी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो आपको भी बताया, जो अमेरिकन ड्रीम का है, दैट सक्सेस इज प्योरली बेस्ड ऑन एफर्ट, it's based on
the ceaseless juggling, the ceaseless effort. So यहाँ पे जब वही रेस चलती रहेगी, रेस भी नहीं कहूंगा मैं, एक गैम्बलिंग कहूंगा, क्योंकि गैम्बलिंग में भी यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज होती है। 10 लोग पैसा लगाते हैं, एक जीतता। सो यही जो गैम्बल है, वही कैपिटलिस्ट ड्रीम है, वही अमेरिकन ड्रीम है। और उससे होता यह है कि जो अटेंशन जो है, real attention, it get diverted from many other barriers, many forms of discrimination like racial discrimination, unequal access to education या structural inequalities, या फिर जो ऑक्सफैम रिपोर्ट है, इन सब से। फिर यही बात करते हैं in the words of Antonio Gramsci, so he gave the concept of cultural hegemony. So cultural hegemony, it means again the the acceptance of authority as natural. तो यहाँ पे जो एलिट्स जो हैं, द रूलिंग अथॉरिटी है, दे डोमिनेट बाय विनिंग कंसेंट। सो यहाँ पे जो द नॉट जस्ट विनिंग कंसेंट, इट इज द बाय हाईजैकिंग कंसेंट, हाईजैकिंग कंसेंट। सो ये दोनों तरीके से होता है, एट द स्ट्रक्चरल लेवल एंड द साइकोलॉजिकल लेवल। सो चीज वही है, if something, if an idea is being repeated throughout your life, so you will accept that idea as natural, even unwillingly. So that's what cultural hegemony is. So यहाँ पे आप दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। So first, the British rule. So British rule was sustained not merely by military might. So they had their own policies, जैसे divide and rule policy है, but उसके अलावा भी they had their own narratives of civilization and modernization. That cultural narrative of claiming their own superiority. So यहाँ पे जैसे मॉडर्निटी की बात करते हैं, सो आज जो है मॉडर्निटी के आइडियाज वो बिल्कुल हर एक फील्ड में दे आर बीइंग क्वेश्चन। सो जैसे एंथ्रोपोलॉजी में या फिर पॉलिटिकल साइंस में, दोनों में ही एक आइडिया है पोस्ट मॉडर्निज्म का। सो बट उस टाइम पे the British, they held this narrative in their hand. They catered to this narrative of being superiority. और फिर उसकी वजह से जो इंडियन मिडिल क्लास है, the Indian elites, they imbued those values. They integrated those values, internalized those values and made them natural and then propagated them. So इसी की वजह से बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटिश रूल इट वाज एक्सेप्टेड। और इसी की वजह से गांधी, अ वेरी वाइज पॉलिटिशियन, मतलब गांधी को मैं जैसे महात्मा तो बिल्कुल है ही है वो, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही वाज अ ह्यूमन। और उस सेंस में आई वुड से ही वाज अ वेरी क्लेवर एंड वाइज पॉलिटिशियन कि he came up with this idea of boycott। और उसके लिए खुद उन्होंने जो है उस आइडिया को, द बेस्ट वे टू प्रीच समथिंग इज टू लिव बाय एग्जांपल। आप कोई चीज करवाना चाहते हैं तो पहले वो चीज खुद में करनी पड़ती है। तो उन्हें पूरी जिंदगी वो एक धोती लंगोट के अंदर घूमते रहे। और साथ में उन्होंने कहा है कि जब तक हम ये सब चीजें जो है, जो दस दस इंटरनलाइजेशन है, जो नेचुरलाइजेशन है, जो फॉरेन एलिमेंट्स, उन सबको हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, जो ब्रिटिश क्लोथ्स हैं, ब्रिटिश मशीनरीज हैं, ब्रिटिश वैल्यूज हैं, ब्रिटिश लैंग्वेज है, और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब को हम जब तक बॉयकॉट नहीं करेंगे तब तक रियल फ्रीडम हमें नहीं मिलेगी। और एक और एलिमेंट आप देख सकते हैं, जो मैं जो वाइज पॉलिटिशियन की बात करता हूं, तो जो एलिमेंट ऑफ सॉल्ट। सो गांधी नियम के लोग एक साथ नहीं आएंगे, वैसे ही कास्ट सिस्टम है, बहुत सारी हायरार्कीज हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा ये इंटरनलाइजेशन और है ब्रिटिश वैल्यूज का। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, जो ब्रिटिश वैल्यू में मॉडर्न हो चुके हैं, उनके लिए एक साथ आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वो सब पॉसिबल, मतलब उसी चीज से एक साथ आएंगे जो सबको बराबर अफेक्ट कर रही है। एंड दैट वाज द सीरीज ऑफ सॉल्ट लॉज। सो यहीं पे दांडी मार्च के थ्रू गांधी ट्राई टू इन्वोक दैट integrated selfhood in all those Indians, कि even if you have naturalized the British values, but उनकी नजर में आप आज भी inferior हैं।
खैर, फिर in the words of Jürgen Habermas, who said that the society today is going through the legitimization crisis, especially the advanced capitalist democracy. So वहाँ पे जो legitimization crisis है, वो legitimation crisis, वो it concern with the fulfillment of the basic necessities, because we have to understand that we are humans, and we as humans we have our own vulnerabilities, we have the unpredictabilities, then the nature itself is unpredictable. So यहाँ पे the financial parameters या जो subjective parameters जो हैं, they cannot govern the lives of people. You have to address all these elements: vulnerabilities, unpredictability of our own nature, and that of nature itself. So इसके लिए जब भी कोई क्राइसिस होती है, you have to address the crisis. Then vulnerable लोगों के लिए you have to provide welfare, क्योंकि हर कोई भला चंगा है नहीं और हर कोई सेम स्थिति से गुजर नहीं रहा है. एंड देन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज भी है ना. 100 लोग किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ही जीत रहा है, बाकी जो 99 लोग जो हैं वो तो वापस उसी गरीबी के अंधेरे में है. सो उनके लिए ये जो चीज जो है, वो वेलफेयर जो है या जो बेसिक प्रोविजंस है, वो कौन देगा. सो ये जो लेजिटिमेशन क्राइसिस जो है, जो हाईलाइट की है हैबरमास ने. फिर अब ये जो क्राइसिस है वो इस तरह से दिख रही है दैट इन एडवांस डेमोक्रेसीज the voter turnout is declining. Then populist movements like Trumpism in the US, Brexit in the UK, या फिर जो पोलैंड, हंगरी, इन सब की बात करें, ये सब भी ये चीज दिखाते हैं कि द सोसाइटी इट इज गेटिंग पोलराइज्ड. और फिर जितने भी कंस्पिरेसीज हैं, कैनॉन की बात कर सकते हैं, एंटी वैक्सीन मूवमेंट्स हैं, या जो ऑल राइट मूवमेंट्स हैं, या और जितने भी ये मूवमेंट्स हैं रिलेटेड टू पोलराइजेशन, रिलेटेड टू द फेक न्यूज क्राइसिस. फिर इंडिया में भी जो ये कह सकते हैं मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, या फिर अगेन द मैनिपुलेशन, न्यूज मैनिपुलेशन, एको चैम्बर्स, ये सब भी वो फिर दिखा रहे हैं कि किस तरह से द होल आइडिया ऑफ लेजिटिमेसी इज फेसिंग अ हार्ड वॉल. क्योंकि जब हर एक चीज जो है गलत नजर आने लगती है, और हर एक जो एलिमेंट है, जो कभी ना कभी तो लोगों को समझ में आएगा कि आखिर में ये सब हो क्या रहा है. सो जब ऐसा होता है, तब सबसे पहली चीज यही आती है कि एवरीथिंग दैट दे हैव बिलीव्ड सो फार इट कम्स अंडर स्केप्टिसिज्म. सो हर एक चीज गलत लगने लगती है. सो उन सब की वजह से the idea that faces the setback is legitimacy itself. फिर यही आइडिया हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं. सो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WTO, they do not have this electoral legitimacy. First, जो बाकी स्टेट्स जितने भी हैं, इंडिया की, अमेरिका की, यूरोपियन गवर्नमेंट, उन सब की बात करते हैं, तो वी हैव दिस इलेक्ट्रल लेजिटिमेसी की जो लोग पावर में है वो लोगों ने खुद इलेक्ट किए, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से इलेक्ट किया नहीं. सो यहाँ पे उनको जो लेजिटिमेसी मिलती है, फर्स्ट इट इज बिकॉज ऑफ द कंसेंसस, द नेशनल कंसेंसस या इंटरनेशनल कंसेंसस की लोग जो हैं, द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी देयर टू डील विद द ग्लोबल इश्यूज. देन जो सेकंड आइडिया है जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अभी भी है, इट इज बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ फेयरनेस, इंक्लूसिविटी एंड इफेक्टिवनेस, कि these institutions they are non-biased, they are working for working to deal with the global issues in a non-biased way. लेकिन धीरे धीरे यही लेजिटिमेसी जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की, स्पेशली ऑफ देयर नॉन बायस नेचर, स्पेशली ऑफ देयर द फ्रैक्शन ऑफ देयर फेयरनेस, इट इज कमिंग अंडर थ्रेट. क्योंकि जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि 5 मेंबर्स हैं.
तो 5 मेंबर्स कह सकते हैं कि दोज वर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विक्टर्स। तो अब इतने टाइम बाद भी, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो गया, अब 2025 है, इतने सालों के बाद भी वही 5 लोग जो है दे हैव द फाइनल से। सो यहाँ पे वो चीज जो है वो वो पावर रियलिटी चेंज होनी चाहिए। फिर सेकंड, जो अगर कोविड 19 पैंडेमिक की बात करें, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो आपको पता ही है कि वो क्राइसिस किस तरह से हाउ इट अनफोल्डेड, कि यूएस बार बार जो है चाइना को बोल रहा था, या फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बोल रहा था कि दिस इज नॉट द कोरोना वायरस, इट इज अ चाइनीज वायरस। और जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इट it somehow, you can say allegedly, it took the side of China, कि वुहान लैब जो है उसमें सही तरीके से रिसर्च किया नहीं किया, तो जो वो रिपोर्ट जितनी भी आई उसकी वजह से देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ WHO, कि शायद बिकॉज कि चाइना जो है वो ग्लोबल स्टेज पे ज़्यादा फंड कर रहा है, और उसकी फंडिंग की वजह से WHO इट इज़ टेकिंग साइड ऑफ चाइना। तो फिर यही है, जब क्वेश्चन होता है तो अगेन क्वेश्चन फिर लेजिटिमेसी पे भी होगा। और फिर जैसे जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्टैब्लिश किए थे टू सुपरवाइज द ग्लोबल इंटरनेशनल लैंडस्केप, और उसके साथ ही जो भी डेवस्टेटेड इकोनॉमीज हैं उनको रीस्ट्रक्चर करने के लिए। सो अब IMF एंड वर्ल्ड बैंक जो है, दोनों ही जो पर्पस उनका सिमिलर है। फर्स्ट, टू हैंडल द इंटरनेशनल द ग्लोबल इकोनॉमी, एंड सेकेंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो ये दोनों जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, कि अगर कोई कंट्री इज गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल प्रेशर्स, फाइनेंशियल इश्यूज, तो उनको वो पैसा ये दोनों इंस्टीट्यूशंस दे सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ये तो वेलफेयर के लिए है, स्पेशली इट इज ग्रांटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में द फंड कम्स विद द कंडीशंस, और कंडीशंस क्या है? टू ओपन अप द इकोनॉमी। तो यहाँ पे कुछ जो कंडीशंस हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं। तो इन सब की वजह से जो रिसीविंग कंट्रीज हैं, जो होस्ट कंट्रीज जो हैं, दे ऑफन फेस द हीट। सो चाहते क्या है, हर कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अपना एक खुद का होता है। इट इज कह सकते हैं कि कस्टमाइज सिस्टम है, कस्टमाइज इकोनॉमिक सिस्टम है, जो भी उस कंट्री की जो रिसोर्सेज और पॉपुलर नीड्स हैं उनके हिसाब से वो चीज चलती है। बट इन वन वे और अनदर जब वो फंड मिलते हैं, बट साथ में जो IMF जो है वो ये भी चाहता है कि वो कंट्रीज जो होस्ट कंट्रीज हैं दे मेक सर्टेन चेंजेस इन देयर इकोनॉमी। नाउ अब वो जो चेंजेस जो है, द डिजायर्ड चेंजेस, अब वो सही है कि नहीं है, एंड व्हाई डू these Bretton Woods institutions need those structural changes in the host countries? So यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, because these institutions, these international organization, they work by funding, यानी जो भी उनको फंड करेगा, जितना फंड करेगा उतना ही उसकी वोटिंग पावर बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली अगर बीच में ये जो लूप है इसको हटा दें, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा दैट US एंड यूरोप दे आर मैसिवली फंडिंग दीज इंस्टीट्यूशन। तो यानी ये यहाँ पे उन होस्ट कंट्रीज के अंदर यही चेंजेस चाहते हैं। सो दे नीड दैट मार्केट एक्सेस, दे नीड दैट मार्केट इन्फ्लुएंस। सो अल्टीमेटली क्या होता है, यह क्या हुआ है बहुत जगह पे, these structural program they end up crippling those host economies। फिर एक और इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज क्रिएटेड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, साथ में इसके साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही। सो उस टाइम से लेकर
जो मॉडर्न फॉर्म आप देख रहे हैं, जो पहले GATT था और बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज ऑल्सो लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी। और उसका ये है जो दोहा डेवलपमेंट राउंड है। नाउ दोहा डेवलपमेंट राउंड, या ये समझिए कि WTO इट अंडरगोज negotiation, a multilateral, a global negotiation among its party nations। जितने भी उसके मेंबर्स हैं, तो सब मेंबर्स को इंक्लूड करके वो निगोशिएट करता है कि क्या रूल्स होने चाहिए, व्हाट शुड बी द रूल्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग डायनेमिक्स। सो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉक्स हुई है, निगोशिएशन हुई है, और फाइनल राउंड वाज द दोहा डेवलपमेंट राउंड दैट स्टार्टेड इन 2001। और उसी के बाद ये चीज वहीं पे रुक गई, क्योंकि उस निगोशिएशन में जो पॉइंट्स थे, स्पेशली रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, फर्स्ट फेयर, सेकंड द मार्केट एक्सेस, और फिर रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, द ट्रेड ट्रीटमेंट, सो उन सब को लेकर जो जो बातें हुई थी या जो भी प्रोविजंस थे, सो यहाँ पे जो डेवलप नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस दोनों ही दे कुड नॉट कम एट अ कॉम्प्रोमाइज, और उसकी वजह से वो चीजें जो है वो आज तक रुकी हुई है 2001 के बाद से। और फिर अब आगे देखते हैं लेजिटिमेसी क्राइसिस इन कंटेम्प्रेरी ईयर। सो जितने भी लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, दे आर फेसिंग दिस इरोजन ऑफ लेजिटिमेसी ड्यू टू राइजिंग इनइक्वलिटीज, elite capture and polarization, जो आइडियाज आपको बता दिए। एंड वन सच मूवमेंट, एक नहीं दो कह सकते हैं, द फर्स्ट ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट एंड सेकंड द स्टॉर्मिंग ऑफ US कैपिटल इन जनवरी 2021। इन दोनों के अंदर ही the idea was same, that the power is is being concentrated in a few hands। now wealth and power both are same, बिकॉज आपको बताया ना कि किस तरह से जो जो पावर का जो डेफिनेशन है, द डेफिनेशन ऑफ पावर, इट हैज चेंज, इट हैज perverted, I won't say change, it perverted, because power is in these days, it is just a forbidden for fruit of lust। सो उसकी वजह से लोग सब अंधे होके वेल्थ के पीछे पड़े हैं, क्योंकि तभी जाके वो पावर को या वेल्थ को इतना लेवरेज मिलेगा। आखिर लोग क्यों पैसा इकट्ठा करेंगे? अल्टीमेटली एक लिमिट होती है। आप चार गाड़ी खरीद सकते हैं, पर चार गाड़ी में एक साथ तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते। सो दैट्स अ सिंपल थिंग। आप जब आप उस चीज की जो शीन जो है, द गोल्डन स्पार्क ऑफ पावर, उसको हटा देते हैं, तो फिर वो वेल्थ से वो चीज हट जाएगी। सो आज के टाइम में पावर इज इक्वेटेड टू वेल्थ। सो जिसके पास पावर ज्यादा है, जिसके पास वेल्थ ज्यादा है, उसके पास पावर है। सो यहाँ पे वेल्थ वही कॉन्सेंट्रेट हो रही है, और वही कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है, बाय मैनिपुलेटिंग आवर ओन कंसेंट एंड लेजिटिमेसी, इट हैज enrich itself, fattened itself at our own expenses। सो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं सिमिलर, कि लोग जो हैं दे रोज अप अगेंस्ट कि how they are feeling the system should go, and how they feel betrayed by extending their own legitimacy। फिर जो अथॉरिटेरियन रेजिम्स होती है, यहाँ पे लेजिटिमेसी इज ऑफन परफॉर्मेंस बेस्ड, कि जितने भी आउटकम्स हैं, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैं, ग्रोथ को, नेशनल सिक्योरिटी, प्राइड, या फिर सर्विस डिलीवरी, तो उन वो सब जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कब तक पावर में रहेगी। जैसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, रशिया है, और ये जितने भी ऑथोरिटेरियन स्टेट्स हैं। बट धीरे धीरे यहाँ पे भी वो चीज, क्योंकि ग्रोथ मोमेंटम जो है वो एक टाइम तक ही मेंटेन हो सकता है, यू नो, द वर्ल्ड इज साइक्लिकल इन नेचर। और वो हम खुद समझते हैं कि देयर इज अ पीक टू एवरीथिंग, फिर उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। और हम लोग जो, हमारी लाइफ्स भी जो है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द द साइनोसियस वेव, साइन वेव जो बोलते हैं, ये वाला जो आपको बताया, कि हमारी लाइफ भी ऐसी ही है ना। एक टाइम पे पीक पे पहुंचते हैं, उसके बाद डिक्लाइन होती है, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारी लाइफ इसी तरह से चलते चलते एक दिन एक फाइनल यही लूप बनता है, यहाँ से लेकर ये पीक, दैट्स द एज ऑफ, कह सकते हैं कि अडल्टहुड। फिर उसके बाद यही डिक्लाइन होती है, और अल्टीमेटली वी ग्रो टू द ओल्ड एज एंड डाई।
तो यही यहाँ पे चीजें जो है, आप जितने भी इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स हैं, वो एक टाइम पे तो उनको भी कम होना ही है, या फिर दे हैव टू गो थ्रू दिस पीक्स एंड ट्रफ्स। बट जहाँ पे जब कोई पोलिटिकल पार्टी, इट हैज लेजिटिमाइज इटसेल्फ ऑन परफॉर्मेंसेस, फिर उसके बाद उसी परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए वो फिर बहुत सारे अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। जैसे चाइना जो है, चाइना ने उसी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए फर्स्ट तो जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं उनको अंधेरे में रखा हुआ है, फिर डोमेस्टिक एनी सच रेजिस्टेंस इज सप्रेस्ड, जो पॉलिटिकल अपोजिशन दे आर एलिमिनेटेड, एंड साथ में इट आल्सो शोज दैट एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज, कि अगर अपने देश से वो इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन नहीं हो रही है तो आसपास के जो जितने भी एरियाज है वहां से वो इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आओ। बट वही चीज जो है, इट इज कैचिंग आयर्स एंड इट इज बैकफायरिंग। फिर सिमिलर इश्यूज जो है, मैना कंट्रीज जो है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, इनके अंदर भी वही चीज है कि पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द लेजिटिमेसी दे एक्सटेंडेड सो फार। सो वहां पे जो भी उनकी पैट्रिमोनियल स्टेट्स हैं या रिलीजियस अथॉरिटीज हैं, they are facing with the issues of corruption, authoritarianism, economic stagnation। और फिर यही डिजिटल एरा के अंदर फाइनली जो कंटेम्प्रेरी टाइम में एक और नया एक्टर है, दैट इज द साइबर वर्ल्ड। सो साइबर वर्ल्ड फर्स्ट, यहाँ पे साइबर वर्ल्ड इट इज अनरेगुलेटेड, एंड सेकेंड यहाँ पे जो लेजिटिमेसी है वो लोगों ने खुद इसको दी है, जो एक्सेप्टेंस जो है वो लोगों ने खुद दिया है। बट साथ में रेगुलेशन ना होने की वजह से दीज एक्टर्स, दीज टेक प्लेटफॉर्म्स, दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अब उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन है, उनके पास वो एल्गोरिथम्स हैं, दे स्प्रेड hate speech directly or indirectly, means even if they do not spread hate speech directly, they do not stop it either. Where they maliciously take people's consent over their data, और फिर वही डेटा जो है वो कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। सो ये चीज़ें हैं, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग लेक्चर। एनीवे, कोई चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आई है तो यू हैव द कमेंट एंड कम्युनिटी सेक्शन, और फिर आपको इसमें जो आंसर राइटिंग के टिप्स दिए हैं उनको लेकर भी आप लोग चाहे सेपरेटली बात कर सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू।